कौन बताएगा? क्लास बताओ, व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन डू यू नो? लुब्रिकेशन टाइप्स, पर्पस इज क्लियर, नाउ टाइप्स. यस. So boundary, hydrodynamic, hydrostatic and elastohydrodynamic lubricant. बाउंड्री, हाइड्रोडायनामिक, उसके बाद Hydrostatic, हाइड्रोस्टैटिक. static, hydrostatic. हाँ, हाइड्रोस्टैटिक, और लास्ट वाला है इलास्टो हाइड्रोडायनामिक. एक होता है मिक्स्ड लुब्रिकेशन ऑल्सो, दैट इज बिटवीन बाउंड्री एंड हाइड्रोडायनामिक. द फेज विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन बाउंड्री एंड हाइड्रोडायनामिक इज कॉल्ड मिक्स्ड lubrication regime, where it is not completely hydrodynamic and not initially like boundary lubrication. ठीक है, तो he has correctly mentioned the types of lubrication regimes. Let us see one by one. ठीक है, what is boundary? As the name says, boundary lubrication means it will be a very thin film lubrication. So this is the keyword you have to mention, thin film लुब्रिकेशन. बाउंड्री लुब्रिकेशन कीवर्ड है ना, जब भी आप बाउंड्री लुब्रिकेशन बात करोगे ओरल में, कभी भी लिखोगे रिटन में, तो मेंशन करो कि थिन फिल्म लुब्रिकेशन होता है बाउंड्री लुब्रिकेशन में. ठीक है, जहां पे देयर इज ए मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट पॉसिबिलिटी. ठीक है, सरफेस पीक्स के ऊपर, अलाउिंग पार्शियल मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बियरिंग, बिटवीन द सरफेसेस. तो जब भी से कि हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड एट द बिगिनिंग, एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर आल्सो, है कि नहीं? जब भी आपका सिस्टम और द यूनिट और द से कि क्रैंकशाफ्ट रोटेशन हो रहा है, जर्नल बेयरिंग स्टार्ट हो रहा है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग, स्टॉपिंग और एट वेरी लो स्पीड्स, your film of oil will not be very good at that time. Okay, because your parts have not started moving, so hydrodynamic oil film cannot be formed at that time. So the initial phase of hydrodynamic lubrication will be a boundary lubrication. but when we say कि आपका जर्नल बेयरिंग में किस तरह का lubrication होता है, then we say it is hydrodynamic, because that is the lubrication regime that is actually happening. During the starting phase, it is boundary lubrication. In between your liner and piston, the lubrication that you have is boundary lubrication. Thin film of oil existing between the two surfaces, moving surfaces. So the problem right now is to clearing MEO class for all 6 writtens and 4 orals ASAP, because you cannot go on shift till the time you do that, and I understand the pressure. So right now how I can help you is, guys, please go for this MEO class for live classes that we have started. I guess there'll be amazing results awaiting you. Apart from that, if you are worried about how will you perform as a 4th year, 3rd year onboard shift, why don't you invest on 4th year, 3rd year excellence package, which is again available on Merchant Navy Decoded platform. ये जितनी चीजें आप ही लोगों के लिए बनाई है, I am waiting that you achieve success and I achieve damn good results. Take care, bye. Okay, so as we start the engine, the components during starting, stopping or very low speed have boundary lubrication. So load is कौन लेता है इसमें? जो कि आपका सरफेस, अगर आप इस फोटो को देखो, इफ यू सी दिस फोटो, in your surface you have got these peaks and lows like this. So initially these are the ones which will carry the load, not your lube oil. Okay, lube oil is a very thin film during this period, during the boundary lubrication. So this period you will have higher friction, but as soon as you will achieve speed, slowly this will come into a thick film of lubrication. So thin film lubrication is your boundary lubrication. Then comes your hydrodynamic lubrication. Hydrodynamic, as the word says, hydro refers to fluid and dynamic means moving. So the moving fluid
moving fluid lubrication is called hydrodynamic. Okay, so the film is developed by the relative motion of between the journal and the bearing surfaces. So it's just saying between the journal. So in the crank pin also you have similar, bottom and bearing में भी ऐसे ही हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन होता है, थ्रस्ट बेयरिंग में भी हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन होता है. So basically what is happening, let us just see what is happening in this photograph. What is happening कि you have a shaft which is loaded, okay, heavy shaft. Up it has just started to move. So this is the, say, direction of movement of the shaft. Initially you had a very thin film of oil between these surfaces. Because of the loading, the oil will not be able to maintain the film because it is loaded. अब क्या होता है कि as the oil has the property of getting squeezed, okay, so as the shaft will start moving, the oil will be carried over with the shaft. That is the relative motion, the film developed by the relative motion between the shaft and the journal. अगर ये journal है जिसपे कि shaft बैठ रहा है, तो journal is stationary. Okay, in our case, in our main bearing, journal का मतलब main bearing जहां पे बैठता है, main bearing keep बोल सकते हैं इसको, journal है ना. तो ये stationary है, जबकि आपका shaft move कर रहा है. When your shaft is moving, there is a relative motion between the two components. एक तो आगे जा रहा है, एक जो है stationary है. So because of that motion, the oil is carried over along with the shaft. Okay, और जैसे जैसे ये shaft अपना speed attain करेगा, as soon as the shaft slowly will attain its speed, the lube oil also will be having one speed along with the shaft, due to which, as the shaft is having higher speed, the lube oil will also be attaining the same speed, due to which there will be a constant film of oil maintained in between the two surfaces. Due to the moving oil, hydrodynamic, oil is moving. So you have not applied any additional pressure from outside. It is because of the movement of the shaft. Because of the shaft movement, the film is automatically maintained between the two surfaces. ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक. So most of the bearings on board vessels are hydrodynamically lubricated. So we are talking about main engine and auxiliary engine bearings, hydrodynamically lubricated. So it's a concept in lubrication which is called hydrodynamic. Oil is fluid and dynamic is moving. So due to the relative motion, there is a thick film of oil maintained between the two moving surfaces because of the relative motion of the surface. Here it also written, shaft rotation drags the oil. शाफ्ट रोटेशन ड्रैग्स मतलब अपने साथ लेके चला जाता है ये ऑयल को धीरे धीरे. समझ रहे हो? आई थिंक आप लोग समझ रहे हो. जैसे कि जैसे जैसे ये मूव करेगा, ऑयल स्क्वीज होकर के इसके अंदर भी साथ में मूव करेगा. जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ेगा, तो वैसे वैसे ऑयल भी एक फिल्म बनाता हुआ जाएगा, जिसके कारण से ये ऑयल, जैसे जैसे ऑयल का भी स्पीड बढ़ेगा, तो ये लोड जो है ऑयल ले लेगा इसमें, और एक मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन गैप बना देगा दोनों सरफेसेस के बीच में. जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ेगा, ऑयल का एक कांस्टेंट फिल्म बन जाएगा इसके अंदर. सर ये हमेशा आधा रहता है क्या सर ऑयल जिसमें रहता है ना? हाँ, ऑयल का सप्लाई रहता है ना, ऑयल सप्लाई. सर नहीं, ऑयल हमेशा हाफ रहता है क्या, जो नीचे दिख रहा है ना इसमें ऑरेंज कलर में, तो हमेशा हाफ रहता है क्या सर? वो पूरा सर्कल नहीं होता है क्या? नहीं, पूरा होता है. ये इनिशियल बता रहा है अभी, ये पूरा फिल्म बनेगा ऐसा. ये पार्ट जो अभी दिखा रहा है, ये इनिशियल पार्ट दिखा रहा है. इसमें ये ऑयल के अंदर मतलब ऑयल ही आपका लोड लेगा बेयरिंग का, मतलब सॉरी शाफ्ट का. तो ऑयल का एक पूरा मोटा फिल्म बनेगा, थिक फिल्म बनेगा. पूरा सर्कल बनेगा सर? हाँ, सर्कल नहीं, मतलब लोडेड पार्ट. जैसे कि अब नीचे वाला पार्ट लोडेड है, तो इस तरह से नीचे वाला पार्ट बनेगा. ऊपर वाला अनलोडेड नहीं है, तो ऊपर फिल्म नहीं बनेगा. फिर से जैसे नीचे वाला लोडेड है, तो ऐसा बनेगा. तो पूरा सर्कल नहीं बनेगा, खाली लोडेड पोर्शन पे जो है तुम्हारा बनेगा पूरा मोटा फिल्म. फिर ऊपर पतला फिल्म हो जाएगा, फिर मोटा फिल्म हो जाएगा नीचे की तरफ.
ठीक है, फिल्म थिकनेस डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द रोटेशन, विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, bearing load and also bearing clearance. That is why we check clearance from time to time. क्योंकि अगर हमारा क्लियरेंस बढ़ जाएगा तो your lube oil film will not be having correct thickness. कैसे? क्योंकि जैसे जैसे क्लियरेंस जितना, जैसे कि स्पेस कम होगा, जैसे कि मान लो कि दो सरफेसेस के बीच में स्पेस कम है तो प्रेशर जो है जल्दी अटेन होगा, राइट। और अगर यही स्पेस बढ़ जाएगा तो फिल्म जो ऑयल जो है इजीली पास हो जाएगा। तो उसमें इवन इफ यू स्टार्ट लोडिंग देयर इज एस्केप रूट फॉर द ऑयल टू एस्केप, तो ऑयल प्रेशर नहीं जनरेट करेगा, ऑयल प्रेशर नहीं जनरेट करेगा तो वेज फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए क्लियरेंस बढ़ने से आपका ऑयल वेज फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है लूब ऑयल का। ठीक है, तो क्या है, इसमें मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होता है, लोड पूरा का पूरा ऑयल फिल्म की वजह से। अच्छा, लोड कैरी कर रहा है, जैसे श्रेयस तुम पूछ रहे हो ऊपर वाली पार्ट में, तो ऊपर वाला पार्ट लोडेड नहीं है। द ओनली पार्ट विच इज लोडेड इज योर बॉटम पार्ट, बिकॉज लोड इज कमिंग लाइक दिस। So top part is not at all loaded, only the lower part is loaded. So lower part will have a continuous film of lubrication. Okay. So the funda is कि shaft rotation is dragging the oil and converging it into a wedge, oil wedge, building up the dynamic pressure that supports the load. Dynamic pressure मतलब मूविंग, ऑयल मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन के कारण प्रेशर इज जनरेटेड इनसाइड द क्लियरेंस स्पेस बिटवीन द टू सरफेसेस, ड्यू टू विच योर ऑयल फिल्म विल बी मेंटेन्ड। ठीक है, यहां लिखा हुआ है ना, हाइड्रोडायनामिक वेज प्रोवाइड्स ऑयल वेज प्रोवाइड्स हाइड्रोडायनामिक लिफ्ट, जिसके कारण ये बेयरिंग लिफ्ट हो जाएगा, मतलब शाफ्ट विल लिफ्ट इनसाइड द ऑयल। ठीक है, आई थिंक दिस इज ओके। हाँ बोलो श्रेयस। में भी सेम होता है क्या सर लुब्रिकेशन बॉल बेयरिंग में सर? नहीं 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 नहीं, बॉल बियरिंग में ये नहीं होता है, ये होता है हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में। बॉल बियरिंग में हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन नहीं होता है। बॉल बियरिंग में आइदर यू विल गिव ग्रीस लुब्रिकेशन, क्योंकि हमको उसमें पॉइंट कांटेक्ट है, उसमें कांटेक्ट नहीं मिल पाता है सरफेस को। ठीक है, या फिर फिक्स्ड उसमें ऑयल भर के हमको ग्रीसिंग करके ग्रीस लुब्रिकेशन, उसको ऑलवेज टू बी सबमर्ज इनसाइड द ऑयल, बिकॉज बॉल बियरिंग या निडल बियरिंग जो होता है उसके अंदर इट इज हैविंग ए रोलिंग कॉन्टैक्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रोलिंग कॉन्टैक्ट ना। तो एलिमेंट्स के अंदर जो है पॉइंट कांटेक्ट होता है। हाँ, बाहर से प्रेशर देते हैं, बेयरिंग प्रेशराइज करके अंदर से ऑयल या ग्रीस इसके अंदर विथ प्रेशर भरते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज ए पॉइंट कांटेक्ट एंड ऑल्सो वी सप्लाई ग्रीस और ऑयल फ्रॉम आउटसाइड इन टू द surfaces to be always filled with oil and grease. So हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन नहीं होता, पंप से ऑयल जाता रहता है। ठीक है, तो हम लोग जो लुब्रिकेशन रिजीम की बात कर रहे हैं हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, ये अपना ऐसे सरफेसेस में होगा जहां पर कंटिन्यूअस ऑयल फ्लो होता रहता है, जबकि हमारे बॉल बेयरिंग में हम कंटिन्यूअसली ऑयल फीड नहीं देते हैं। ठीक है, एक बार उसके अंदर ग्रीस भर दिया या ऑयल फिल कर दिया तो वो ही उसको लुब्रिकेट करेगा, बट कंटिन्यूअस ऑयल फीड नहीं रहता है। सो दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ लुब्रिकेशन इज नॉट पॉसिबल देयर। ओके, तो वहां पे फिल्म ऑफ ऑयल नहीं बनता, उसके अंदर वो पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो दैट इज ऑलवेज सबमर्ज इनसाइड द ग्रीस और ऑयल सरफेस। ठीक है, ओके, ठीक है श्रेयस, समझ में आया ना तुमको?
सर ये जो बाउंड्री लुब्रिकेशन में एक और उसमें पॉइंट है लास्ट में, वो क्या है सर? अल्कलाइन करके कुछ था ना सर? बाउंड्री लुब्रिकेशन में एक और पॉइंट है, वो सर ये ZDBP, वो क्या है सर? अरे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब दे हैव रिटन इट की सरफेस इंप्यूरिटीज, जैसे कि एंटी वियर एडिटिव्स वगैरह, जैसे कि लाइनर का जो सरफेस होता है ना, मान लो कि सिलेंडर लाइनर और पिस्टन के बीच में हो रहा है, तो इनिशियल लुब्रिकेशन जो होता है वो सरफेस लुब्रिकेशन होता है, जिसको करते हैं कि बाउंड्री लुब्रिकेशन। तो सरफेस के ऊपर कुछ इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं ताकि जो इनिशियल अगर लुब्रिकेशन थिन फिल्म नहीं, मतलब फिल्म अगर बहुत अच्छा नहीं है दोनों सरफेसेस के बीच में, तो ऐसा ना हो कि सरफेस का वियर डाउन हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा बहुत ऊपर से इंप्यूरिटीज ऐड करके रखते हैं, जैसे कि यहां पे बोला इसने सरफेस एस्पिरिटीज, ठीक है, या एंटी वियर एडिटिव्स, इस तरह का एंटी वियर एडिटिव्स इन दी ऑयल और सरफेस एस्पिरिटीज ऑफ दी सरफेसेस, टू सरफेसेस। लाइनर के ऊपर जो लाइनर का जो सरफेस होता है उसमें कुछ इस तरह से थोड़ा सा सरफेस में ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा वेज टाइप का, ताकि वो एक दूसरे जब रब करे तो लाइनर का मेन सरफेस नहीं कोरोड हो या वियर डाउन हो और इरोड हो, जबकि ये सरफेस वियर डाउन हो, इसीलिए ये दे रखा है। ये हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, आप बस ये याद रखो कि इनिशियली स्टार्टिंग के टाइम पे ये होता है, पार्शियल मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है और थिन फिल्म लुब्रिकेशन होता है इसमें। ठीक है, हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन आपको मेन बियरिंग में होता है, क्रैंकपिन बियरिंग में होता है, क्रॉसेड बियरिंग में होता है, जर्नल बियरिंग जहां भी होगा आपको हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद ये फोटो दिया है फुल फ्लूइड फिल्म का, दैट इज हाइड्रोडायनामिक ओनली, फुल फ्लूइड फिल्म इज हाइड्रोडायनामिक। यहाँ पे बट थोड़ा सा ये मत देखो, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन दिया है, ये भी फुल फ्लूइड फिल्म ही होता है हाइड्रोस्टैटिक, बट हाइड्रोस्टैटिक अब हमने देखा था कि डायनामिक जो होता है वो रिलेटिव मोशन ऑफ द शाफ्ट के कारण डायनामिक होता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑयल विथ अलोंग विद द शाफ्ट causes hydrodynamic lubrication, but in case of hydrostatic there is no relative motion, that is why it is called static means stationary। अब ये अचीव कैसे होता है, हाइड्रो मीन्स फ्लूइड, द एक्सटर्नल पंप supplies pressurized oil to the bearing surfaces before the shaft rotation। तो अभी शाफ्ट ने स्टार्ट करना मूव शुरू नहीं किया है, हमारा एक जर्नल है, शाफ्ट है और ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। इन द स्टार्टिंग फेज वी आर गिविंग एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ ऑयल इनसाइड विद अ हाई प्रेशर, pressurized oil to create a film before startup, so that no metal to metal or little bit of surface contact also is not happening. In that case it is called hydrostatic lubrication to the bearing surfaces before the shaft rotation. Oil is fed through the restrictors or orifice to form a supporting oil film even when they are stationary, maintains the lubrication during slow step, okay, where hydrodynamic oil film cannot be formed। जैसे कि आपका क्रॉसेड बियरिंग में हमने ये पढ़ा है कि सल्जर इंजन में दे आर यूजिंग एक्सटर्नल पंप टू प्रेशराइज द बियरिंग एट वेरी हाई प्रेशर। सो दिस एक्सटर्नल पंप क्या कर रहा है, आपका ऑयल को वेज, because it is difficult to make oil wedge in the crossed lubrication, no, because there are 2-3 different kind of forces acting on the crossed bearing, due to which what they did was कि they used one plain bearing and they supplied externally oil pressure inside the bearing initially,
16 bar pressure पर initially only they started supplying oil, due to which the continuous oil film was maintained in the Sulzer. We'll see when we will see the Sulzer lubrication. Okay, so generally where it is always heavily loaded, in that kind of bearings we are using hydrostatic lubrication. Very large journal bearings, heavy duty thrust block bearings also can employ hydrostatic lubrication. बट हाइड्रोस्टैटिक का चैलेंज ये है कि आपको एक्सटर्नल पंप यूज करना पड़ेगा और इट शुड बी एट अ वेरी हायर प्रेशर, देन ओनली यू कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ इनर्शिया, राइट. इनर्शिया का मतलब जो इनिशियल मूवमेंट के पहले जो मटेरियल का मास की वजह से लोड है उसको इनर्शिया लोड बोलते हैं. So the shaft is having its own weight, due to which it is sitting over the journal. Okay, या बेयरिंग के ऊपर बैठा हुआ है. तो बेयरिंग और शाफ्ट को सेपरेट करने के लिए अगर आपको एक्सटर्नली प्रेशर दे करके शाफ्ट को के अंदर एक फिल्म बनाना पड़े तो दैट विल टेक यू एन एक्स्ट्रा प्रेशर. ओके, so that is why pressurized oil should be very pressurized in hydrostatic lubrication. Okay, and the before any operation, before the start operation, the oil is to be fed. ठीक है, इसीलिए जैसे कि सल्जर में हम लोग इंजन स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले क्रॉसेड लुब्रिकेशन पंप स्टार्ट करना जरूरी है, देन ओनली द ऑयल फिल्म विल बी मेंटेन्ड इन द क्रॉसेड बेयरिंग. ठीक है, कांस्टेंट ऑयल फिल्म इज मेंटेन्ड इन दिस केस इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड. स्पीड कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन में अगर स्पीड रिड्यूस होगी, ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग फेज होगा या स्टॉपिंग का फेज होगा, तो एट दैट टाइम आपका लुब्रिकेशन का फिल्म उतना अच्छा नहीं बनेगा हाइड्रोडायनामिक में, और हाइड्रोस्टैटिक में कांस्टेंट ऑयल फिल्म लुब्रिकेशन होता है. ठीक है, एक होता है इलास्टो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन. ठीक है, जो अभी श्रेयस पूछ रहा था कि बॉल बियरिंग वगैरह, तो रोलिंग एलिमेंट बियरिंग या रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग जहां पे हमको सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट मिलता है, वहां पे अगर हम कंटिन्यूअस ऑयल फीड देंगे तो हम इलास्टो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन अचीव कर सकते हैं. इन दैट केस जब भी रोलिंग मोशन एग्जिस्ट करती है इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक्स में, व्हेन रोलिंग मोशन एग्जिस्ट्स between the moving elements and the contact area is very low, so if it is a roller bearing, it is a ball bearing, it is a spheroidal bearing, okay, in that case the rolling elements or the moving element has very lower contact area between the two surfaces. ठीक है, तो ऐसे केसेस में what we achieve is called hydrodynamic लुब्रिकेशन, इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक. इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन में क्या होता है कि ड्यू टू अ वेरी स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया द इलास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस. अब क्या होगा कि देखो, जो अगर ये देखो, ये मान लो कि ये रोलर बेयरिंग है और ये एक रोलर बॉल है, ठीक है, उसका, और नीचे आपका दूसरा एंड है, कॉन्टैक्ट है, दूसरा सरफेस. तो आपका अगर कांटेक्ट छोटा है तो क्या होगा कि हीट फॉर्मेशन होगा, हीट जनरेशन होगा इन दोनों सरफेसेस के बीच में. व्हेन हीट जनरेशन विल बी टेकिंग प्लेस, मोमेंटरीली your balls will be elastically deformed. That is why it is called elastic deformation, elasto hydrodynamic. Elasto hydrodynamic मतलब रिलेटिव मोशन के कारण, हाइड्रोडायनामिक रिलेटिव मोशन के कारण ऑयल फिल्म तो बनेगा, हाइड्रोडायनामिक है, बट देयर विल आल्सो बी एन इलास्टिक डिफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस. इलास्टिक हमने पढ़ा था, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि मटेरियल जो है अपने यील्ड लिमिट से कम होता है और इट रीगेन्स इट्स सेम शेप एंड साइज व्हेन यू अप्लाई द इलास्टिक लोड, और इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस. मटेरियल साइंस में पढ़ा था ना कि कोई भी मटेरियल जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, कि इलास्टिक लिमिट एक लिमिट है जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस कितना भी लगाओ आपका एक लिमिट तक
वो वापस अपने शेप को रीगेन कर लेता है मटेरियल, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट और इलास्टिक डिफॉर्मेशन. सो इन केस ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन इट विल अगेन रीगेन इट्स शेप. तो क्या होगा कि ऐसा करके जैसे कि सरफेस इलास्टिकली डिफॉर्म होगा, ऑयल फिल्म बनने के लिए एक रास्ता मिलता है इसको. ठीक है. सो ऑयल फिल्म थिकनेस शार्पली ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द सरफेस अंडर हाई प्रेशर. कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया जिसकी वजह से टेम्परेचर राइजेस, जिसकी वजह से प्रेशर राइजेस एट दैट कॉन्टैक्ट पॉइंट, ड्यू टू विच राइज इन प्रेशर there is a path for the oil to form a film. हाई प्रेशर के कारण ऑयल स्क्वीज होगा, ऑयल स्क्वीज होकर के एक पाथ ऑफ ऑयल बनाएगा. जबकि हमारा उसमें क्या था, हाइड्रोडायनामिक में कंटिन्यूअसली लोडेड था सरफेस, जिसके कारण ऑयल स्क्वीज होकर के कंटिन्यूअसली वेज के साथ मूव कर रहा था, यानी शाफ्ट के साथ मूव कर रहा था. तो जिसके कारण ऑयल फिल्म, एक कंटिन्यूअस ऑयल फिल्म बहुत इजीली बन रहा था. बट इस केस में क्या हो रहा है कि बॉल जो होता है वो एक जगह पे स्क्वीज हो रहा है ऑयल, जिसके कारण हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिसके कारण फिल्म बन रहा है. फिर दूसरा बॉल आ जा रहा है, वो स्क्वीज हो रहा है, फिर फिल्म बन रहा है. तो जिसके कारण ऑयल फिल्म तो बनता है, बट ड्यू टू द इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द रोलिंग कॉन्टैक्ट और द रोलिंग एलिमेंट्स. Okay, these are happening in also in the gear teeth, जहां पे आपको gears are having a point contact. Okay, gear teeth are having a point contact with the surface. यहां पे भी आपको इलास्टिक हाइड्रोडायनेमिक lubrication देखने मिलेगा. Cam followers. Okay, but we'll take the example of rolling element bearings and your gear teeth. Gears. So this temporary elastic deformation helps in maintaining the full oil film separations. Oil viscosity rises momentarily under pressure, improving the film strength. Okay, so this is the types of lubrication. One mixed type that I was talking about is from boundary to hydrodynamic. The phase which exists between the boundary to hydrodynamic is called mixed lubrication. But you take the name of these four only for your oral purpose: boundary, hydrodynamic, hydrostatic, and elastohydrodynamic. The four film types of lubrication. Okay.